morning to all of you. So we are doing data handling exercise 3.1. We have started with up to 7th question we have done. Let us start with question number 8. Question number 8. Rainfall in a city on 7 days of a certain week has been recorded. There are days and Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, then Sunday. Rainfall on the different days given like this. Rainfall data is given like this. First part is we want to find the range of the data. So what is the formula for range? Maximum value minus minimum value. So write down range is equal to maximum value minus minimum value. This is equal to maximum value is and the minimum value is 0.0. So it comes out to be 20.5. First part, finding out the range of the data. बेटे थोड़ा सा बेंच आप इधर करो. Finding out the range of the data. Let us start with the second part. Second part is find the mean rainfall. Hanji, what is the formula for mean? Over total number of observations. So we are writing sum of observations over sum of observations over total number of observations. This is 0.0, 12.2, 2.1, 0.0, 20.5, 5.5 plus 1.1. Sum of observations over total number of observations. How many are these? 7. Add करो सारी values को क्या आ रहा है? Yes? Do you agree with Chitesh? 41.3 is saying the total is 41.3. Add up and let me know. Gorish, Shubh, add all these values and let me know. Is it 40.13? All of you add up. I'm also doing addition. अच्छा जी, एक मिनट मुझे भी देखने दो. मेरा तो पीछे 4 आ रहा है. ऐसे कैसे? 12.2, 2.1, 0.0, 20.5 और अच्छा ये लास्ट इज 1.0. This is 40.3. So the total is 40.3. Total is 40.3. डिवाइड कर दो इसको 40.3 को 7 से. $5.75 approximately. सारे करो कैलकुलेशंस.
Approximately 5.75 will be the answer. Is it okay? $41.3. Okay. Sorry. 5.9. 41.3. So the answer is 5.9 after division. Let us start with the third part. Same question. Third part. Third part is, on how many days was the rainfall less than the mean rainfall? आपके पास इतने डेज का रेनफॉल दिया हुआ है, मीन रेनफॉल कितना आया है 5.9. आपने देखना है कितने डेज 5.9 से कम था रेनफॉल. देखिए जरा, 5.9 से कम, ये भी कम, ये भी कम, ये भी कम, ये भी कम. So how many days are there on which rainfall is lesser than the mean rainfall? 5 days. So there are 5 days which have the rainfall less than the mean rainfall. There are 5 days which have the rainfall less than the mean rainfall. 5 दिन ऐसे हैं जिनका रेनफॉल मीन रेनफॉल जो मीन आया है उसकी वैल्यू से कम है. Question number 9. Heights of the 10 girls in the centimeter is as. टेन गर्ल्स की हाइट हमें ये दी हुई है. ऑफ ए क्लास, height of the 10 girls, it is given in a data like this. Heights of the 10 girls of a class is given like this. What is the height of the tallest girl? 151. Height of the tallest girl. (151 centimeter). Height of the tallest girl is 151 centimeter. Height of the shortest girl 128. So height of the shortest girl (128 centimeter). Height of the shortest girl is 128 centimeter. Range of the data. What is the formula for range? Maximum value minus minimum value. Range is the maximum value minus minimum value, and that comes out to be 23.
Fourth is find the mean height of the data. Mean height. Sum of the observations over total number of observations. Sum of observations over total number of observations. Let us write the values 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141. कितने स्टूडेंट्स है टोटल? कितनी हाइट्स? 10. एड अप 14. एक बार सारे ऐड करो. आई एम आल्सो एडिंग. ऑल ऑफ यू ऐड. Do addition. One four. The total value is 1414 divided by 10. 141.4. You can see that the mean value, it is in between all these values. कभी भी mean value जो है वो डाटा के बाहर नहीं होगी. उससे ना तो किसी वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू से सबसे बड़ी से बड़ी होगी, ना ही सबसे छोटी से छोटी होगी. It will be from the in between the values of the data. अर्थमेटिक वर्ड मतलब तल्ला मीन भी लिख लोगे तब भी चलेगा. एवरेज और मीन बोथ स्टैंड फॉर द सेम. How many girls have heights more than the mean height? Mean height से ज्यादा. 1 girl, 2 girl, 3 girl, 4 girl, 5 girl. That means 5 girls are having height more than the mean height. 5 लड़कियों की हाइट जो है वो मीन हाइट से ज्यादा है. 5 girls are having height more than the mean height. 5 girls की जो हाइट है वो मीन हाइट से ज्यादा है. Is it okay? Let us do mode. Mode. Mode is the another measure of central tendency. You see the example given below. He says that mean is not the only measure of central tendency. Look at page number 64 at the top. Let us learn about mode, that what is mode, what is its definition. He says mean के साथ इसको हम link करते हुए that mean is not the only measure of central tendency or the only form of representative value. For different requirements from a data, other measure of central tendency are used. कहता mode
मीन अकेला ही किसी डाटा का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता. This is not only the one measure of central tendency. There are other measures of central tendency are there. There are other measure of central tendency also, and the second measure of central tendency is mode. हमने mean कर लिया. This is representative of data. This is one of the measure of central tendency. But there are other measure of central tendency also, and one of them is mode. देखो कैसे. एक शॉपकीपर के पास, नीचे देखो आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है, डिफरेंट साइज की शर्ट्स उसने सेल की. हम मोड का आइडिया लेते हैं. 90 सेंटीमीटर की जो शर्ट्स हैं उसने सेंड की. कितनी है? 8 शर्ट्स उसने 90 सेंटीमीटर साइज की सेल की. देन 95 सेंटीमीटर की 22 शर्ट्स, 100 सेंटीमीटर की 32 शर्ट्स, 105 सेंटीमीटर की 110 की, और टोटल उसने 105 शर्ट्स है. सबसे पहले हमने इस डाटा का मीन निकाला. जब हम इस डाटा का मीन निकालते हैं तो आंसर आता है 21. इज द मीन ऑफ द डाटा. तो कहता क्या करे शॉपकीपर. 21 शर्ट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में जब मीन निकाला था, मीन इज द रिप्रेजेंटेटिव. हम कहते थे इसके अराउंड वैल्यूज क्लस्टर कर रही हैं, इसके अराउंड वैल्यू जो है वो रिवॉल्व कर रही है और इसी पे जाके वैल्यू केंद्रित हो रही है, सेंटर्ड हो रही है. बट यहाँ पे 21 शर्ट्स के अराउंड क्या सेंटर हो रहा है, कुछ भी नहीं पता चलता. यानी कि मीन हमने तब यूज किया जब हमने कंपैरिजन करना था कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर है, कौन ज्यादा अच्छा प्लेयर है, तो हमने मीन यूज किया. आगे देखो. The owner of the ready-made dress shop says the most popular size of the dress I sell is 90 centimeter. Observe that here also the owner is concerned about the number of shirts of the different size he sold. She is, however, looking at the shirt size that is sold the most. This is another representative for the data. Highest occurring event in the sale of size 90 centimeter. This the representative value of is called the mode of the data. देखो कौन सी जो है शर्ट्स, किस साइज की शर्ट उसने मैक्सिमम सेल की? 105 साइज की शर्ट उसने जो है वो मैक्सिमम सेल की. यहाँ पे गलत लिखा हुआ है. दैट another representative of volume that highest occurring event is the sale of size 90 centimeter. 90 सेंटीमीटर की थोड़ा मैक्सिमम है. मैक्सिमम किस साइज की है? 105. 105 की जो नंबर ऑफ शर्ट्स हैं वो ज्यादा बिकी हैं, तो इसलिए इसको हम कहेंगे अनदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाटा, और इसको क्या बोलते हैं? मोड ऑफ द डाटा. जब हम इस तरह का डाटा देख रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि मीन क्या है, हम कहेंगे ये देखो फटाफट से कि कौन सी शर्ट्स ज्यादा सेल हुई है. तो आपके सामने ही है कौन सी शर्ट ज्यादा सेल हुई है जिसका साइज 105 सेंटीमीटर है. तो यहां से हमने एक डेफिनेशन ऑब्टेन की दैट मोड क्या होता है? द मोस्ट फ्रीक्वेंटली occurred observation. The most frequently occurred observation of the data. The most frequently occurred observation of the data. या फिर आप another word में कह सकते हो which occurs maximum number of times in the data.
maximum number of times in the data which occurs maximum ये मैंने अनदर वर्ड्स में डेफिनेशन और which occurs maximum number of times in the data. मॉड क्या है? जो ज्यादा बार किसी डेटा में अपीयर होता है. अगर आप 90 सेंटीमीटर की शर्ट देखो तो वो 8 ही है, उसका नंबर है 8. 95 सेंटीमीटर वाली शर्ट्स का नंबर है 22. 100 सेंटीमीटर वाली शर्ट का नंबर है 32. 105 सेंटीमीटर वाली शर्ट का नंबर है 37 एंड 110 सेंटीमीटर वाली साइज वाली शर्ट का नंबर है 6. तो इसका मतलब है कौन से साइज वाली शर्ट जो है वो ज्यादा बार डाटा में आ रही है, 105 सेंटीमीटर वाली, और इसको क्या बोलते हैं? मोड. अब कुछ बच्चों को एक कंफ्यूजन रहती है, वो क्या कहते हैं कि 37 मैक्सिमम वैल्यू है तो 37 मोड हो गया. नहीं, 37 इज द वैल्यू. मोड जो होगा वो ऑब्जर्वेशंस में से होगा. ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, और ये ऑब्जर्वेशंस की क्या है? वैल्यू है. हमें जो मोड है वो डाटा में से फाइंड करना है. डाटा इसका दिया हुआ है तो मोड वैल्यू में से, ऑब्जर्वेशन में से ढूंढेंगे हम. 105 मोड होगा. 37 वैल्यू हमें ये बताएगी कि कौन मोड होगा, और मोड हमेशा ऑब्जर्वेशंस में से ही एक होगा. अब आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे 37 मोड बन गया. नहीं, 37 इज द वैल्यू. मोड किस में से आएगा? ऑब्जर्वेशन में से. तो आपने मोटी से एक बात याद रखनी है, that mode is that value which occurs maximum number of times in the data. जो डाटा में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आता है उसको बोलते हैं मोड. ठीक है. जैसे कि मैं आपको बोलूं आपके पास किस कलर की शर्ट्स जो है वो ज्यादा है. किसी के पास व्हाइट कलर की होगी तो व्हाइट उस डाटा का मोड बन गया. किसी के पास रेड कलर की ज्यादा होगी तो रेड कलर उस डाटा का मोड बन गया. ठीक है. So mode is a different way to to study the data. This tells us that which value occurs maximum number of time in the data. ठीक है. तो जब हमने कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है, किसकी परफॉर्मेंस बेटर है, कौन अच्छा प्लेयर है, किस दिन कौन सा रेनफॉल ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा है, उस टाइम पे मीन. और जब हमने देखना है कि कौन सबसे ज्यादा बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लिए हुए बैठा है, ऐसी कंडीशन में मोड. ठीक है. तो ये याद रखना. अच्छा, अब किसी किसी डाटा में, अब मैं आपको एक सीधा डाटा लिख के दिखाती हूँ जिसमें वैल्यूज ऑब्जर्वेशंस की नहीं लिखी. मान लो मैंने एक डाटा लिखा 2 2 2 1 2 5 5 5 5 and 6. And if I ask you which number will become the mode of the data? 2 भी 4 times आ रहा है, 5 भी 4 times आ रहा है. तो इसका मतलब दोनों ही इस डाटा के मॉड हो गए. इसको हम बोलते हैं बाई मॉड्यूल डाटा. बाई मॉडल डाटा. बाई का मतलब आपको आपने साइंस में पढ़ा हुआ है 2 होता है. बाइनोमियल हमने पढ़ा था ना मैथ्स में. बाइनोमियल मींस जो जिसकी 2 टर्म्स होती हैं, जिसके आगे बाई लग गया. इस बाई साइकिल, जिसके 2 पहिए होते हैं उसको बाई साइकिल बोलते हैं. इसी तरह से जिसके 2 मोड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बाई मॉडल. तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, बार बार आएगा, उसको हम उस डाटा का क्या बोलते हैं? मोड. Now look at try these. अभी तक आपका होमवर्क होगा एक्सरसाइज 3.1 का 8th and 9th क्वेश्चन. एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 8 and 9, मॉड की डेफिनेशन. And now we are starting with try these, page number 65. First try these आपका होमवर्क सेकंड में करवाने लगी. Page 65, try these first. This will be the homework.
एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 89 मोड की डेफिनेशन पेज नंबर 85 सॉरी 65 try this का first and try this second we are discussing. Let us discuss try this second page number 66. पेज पे try this second. Heights in centimeter of 25 children are given. What is the mode of their height? What do we understand by mode here? एक चीज का ध्यान रखना, जहां पे हमारे पास डाटा में मैक्सिमम ज्यादा वैल्यूज दी होती हैं वहां भी हमें थोड़ा स्टडी करना मुश्किल हो जाता है डाटा को. हम क्या करते हैं, उसका टेबल बना लेते हैं. जैसे सबसे पहली वैल्यू है 168. पहले आप लिखो हाइट, दूसरे खाने में लिखो फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कल मैंने फ्रीक्वेंसी की आपको बताई थी डेफिनेशन. appears in a data, number of times an observation appears in a data. यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि 168 डाटा में कितनी बार आ रहा है. काउंट करो. 168 is occurring only one time. Next number is 165. I think 165 is appearing 3 times. Then 163. I think 9 times. 9 times. 160. 4 times. 163 हो गया. 161. 1 time. 162. 4 times. 164. I think 3 times. 163 हो गया, 62 हो गया, 64 हो गया, 60 हो गया, 65 नहीं हो गया, 60. बस और कोई वैल्यू नहीं है. डिफरेंट वैल्यूज हमने काउंट कर. अब डाटा के ऊपर देखो, उसने डाटा कितने चिल्ड्रन का दिया हुआ था? 25 चिल्ड्रन का. ऐड करके देखो 25 बन रहा है. अगर बन रहा है तो इसका मतलब काफी हद तक आपकी जो कैलकुलेशन है वो ठीक है. बिल्कुल बन रहा है. मेरा तो 25 बन रहा है. हाँ जी सक्षम स्मार्ट, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? यस मैम. मैम आपने वो बाय मोड लिखवा था, फिर बाय मॉडल. बाय मॉडल. ठीक है. चलो ओके मैम. सो ये 25 बन रहा है ना, इसका मतलब 25 चिल्ड्रन की हाइट दी हुई थी और हमारा डाटा भी उस चीज को एग्री कर रहा है जो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी बनाई है. अब आओ जरा आगे क्या कह रहा है. नेक्स्ट ही सेज व्हाट इज द मोड ऑफ देयर हाइट्स. हाँ जी मिताती बता सकते हो? 163 because maximum frequency is of 163. So mod is equal to 163 centimeter. ठीक है. अब साथ में एक क्वेश्चन उसने और पूछा, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मॉड हियर? एनीवन? यहां पे डाटा के साथ लिंक करके बताओ. That means mode is telling that maximum girls are having the height 163 centimeter. आप लिखोगे we are understanding that maximum girls, mode is telling that maximum number of girls have the height
163 centimeter. Maximum girls have the height 163 centimeter. फेयर में दिखा दो, ठीक है, फेयर में दिखा दो टेबल। लिखी तो है भाई, नहीं नहीं वो तो सिर्फ आपने देखनी है। टीचर आपने यहाँ पे सर्कल कर देना, टीचर को खुद पता चल जाएगा कि बच्चे ने इसमें से मैक्सिमम को देखते हुए मोड लिख दिया। कुछ बच्चे 9 मोड लिखाएंगे, गलत। 9 वैल्यू है, मोड हमेशा ऑब्जर्वेशंस में से होगा और 163 की हाईएस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब 163 जो है वो हमारा मोड बन जाएगा। हाँ, दैट इज ऑल्सो वन वे, उससे गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए मैंने टेबल फॉर्म में करवाया। चलिए आगे देखो कुछ ऑब्जर्वेशन जो कि 1 मार्क में आ सकती हैं। Whereas mean gives us the average of all the observation, mode gives us that observation which occurs more frequently in the data. Mean हमें सारी ऑब्जर्वेशन की एवरेज बताता है और मोड हमें बताता है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डाटा में अकर कर रही है, कौन सी ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डाटा में अकर कर रही है। चलिए, you have to decide upon the number of chapatis needed for 25 people called for a feast. आपने 25 लोगों को भोजन पे बुलाया अपने घर, ठीक है, और आपने डिसाइड करना है नंबर ऑफ चपातीज उनके लिए कितनी नीडेड हो रही है। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। शॉपकीपर सेलिंग शर्ट्स हैज डिसाइडेड टू replenish her stock. We need to find the height of the door needed in our house. When going on a picnic, if only one fruit can be bought for everyone, which is the fruit that we would get? In which of these situations we can use the mode as a good estimate? कल इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी कंडीशन में से मोड को निकालना will be the better way to understand the data. ठीक है, आप एक बार आप भी अपने माइंड में इसको करके देखना, फिर I will explain it, right?